So let me tell you few questions from those questions which I tell you yesterday. The first few were to find out the rational numbers between the two given rational numbers. So these questions are not new. Those you have already done in 7th as well as in 8th. The new thing which we have studied this year is to convert non-terminating repeating decimal into rational. उसी का एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ. 0.585 and bar on all the three. 585 bar. Okay. So if we are having a question like this, we will solve it like that only as we have discussed. This is x. Then x is equals to 0.585. This is our first equation. Bar is there on how many digits? By what I should multiply? 1000. I will have to multiply it by 1000. So 1000x is equals to 585. So due to 1000, 3 digits will shift to that side of decimal. It will become 585. 585. This is our second. Subtract first from second. 1000x में से x गया तो 999x और here it will be 585.000. So the x will be 585 upon 999. Both of them are divisible by 3. So 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 3 5 जा 50. On here it is 3 3 3. Can they be divided now also? Yes, they can be divided. 3 6 जा 18, 3 5 जा. अभी भी हो रहा है क्या? No, अब नहीं हो रहा. So this will be the final answer of your question. ये हो जाएगा आपका final. Okay. Similarly, I would like to tell you a question in which bar is not there on all the digits. Sub digits पर bar नहीं है. Then what will happen? So first of all, we will make a symmetry for it. इसके लिए एक symmetry बनानी पड़ेगी and then we will go for it. चलिए देखते हैं एक question में सब. The question is x is equals to 15.712. Bar is on 121. Bar is on 121. So first of all, we are worried about this 7 because on this 7 bar is not there. So I will have to take this 7 other side. So by what number I should multiply? I should multiply it by 10 because when I have multiplied it by 10, it will be this 7 will come other side of decimal. So if this is our first, I am multiplying it by 10 first of all. So it will become 10x 157.121212. Because only 1 2 is having bar na, so 1 2 will be repeated. Got it? Now at how many digits bar is there? 2 digits. So I should multiply it by 100. 2 seconds, not 2 first. 2 seconds. So when 10 will be multiplied by 100, it will become 1000. And now 1 2 will also be before decimal. So 15712.1212 and so on. This is our third. Got it? Now second will be subtracted from third. 1000 minus 10 will be 990x. And out of this I will have to subtract this. So 12 minus 7, 5. What left? 10 minus 5, 5. 6 minus 1, 5. So this is 15555 is equals to x
So x is equals to 15,555 upon 990. Is it divisible by 3? 3 से हो रहा है क्या? 5 से हो रहा है, चलो 5 से कर लो भाई पहले। तो 5 3 जा 15, 1 1 1 और ये 5 1 जा 5, 5 9 जा 45 और 5 8 जा 40। अब 3 से हो रहा है क्या? 3 से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 6 जा 18, 3 6 जा, फिर से हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। So this is the final answer. हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Yes. So this way, this type of question we will solve in your RD. Okay, and thereafter we are having the questions to find the irrational numbers. These are also once again important, like find two irrational numbers between page number 1.26 I am talking. Page number 1.26, example number 4. Find two rational numbers between 2 and 2.5. 2 and 2.5 के बीच में हमें टू irrational numbers लिखने हैं. Okay, so there can be two ways as we discussed. दो तरीके से सीखे हैं ना हमने. One is if this is A, this is B, the irrational between them will be root A. ये थोड़ा सा मुश्किल तरीका है. And the आसान one is 2.10, 100, 1001. One of them is this 2.13, 133, 13331. So we got these two irrational between the given two rational numbers. ये हमारा आसान तरीका है. इस तरह से हमें निकालना हमेशा आसान है. Okay, this way he may ask you to find. लेकिन अगर रूट में ही दिया हुआ है, वो कह रहा है find two irrational between root 2 and root 3. इसके बीच में दो इरेशनल निकालना, तो फिर क्या तरीका है? तो फिर हमारे पास कुछ तरीका बचता नहीं है. स्क्वायर रूट 2 इंटू रूट 3, स्क्वायर रूट ऑफ रूट 2 इंटू रूट 3, तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ रूट 6, स्क्वायर रूट ऑफ रूट 6. और रूट 6 का स्क्वायर रूट का मतलब क्या है? 6 की पावर 1/2 की पावर 1, यानी 6 की पावर 1/4. ठीक है, ये तो एक निकला. अब सर एक और निकाल के दिखाओ. एक और निकाल के दिखाते हैं. भाई रूट का मतलब 1/2 ना. रूट का मतलब ये वाले रूट को मैंने पावर 1/2 लिख दिया. रूट 2 और 6 की पावर 1/2. अब इन दोनों के बीच में निकाल. पहले हमने रूट 2 और रूट 3 के बीच में 6 की पावर 1/4 निकाल दिया. अब इन दोनों के बीच में एक निकालना, चाहे तो हम इन दोनों के बीच में भी निकाल सकते हैं. तो दैट वो कैसे निकलेगा? उसको निकलने का एक ही तरीका है, स्क्वायर रूट ऑफ रूट 2 इंटू 6 की पावर 1/4, है ना. अब स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2, रूट 2 इंटू 6 की पावर 1/4. रूट 2 का मतलब भी क्या? 2 की पावर 1/2. अब दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो गया? 2 की पावर 1/4, 6 की पावर 1/8. दिस इज अनदर रेशनल नंबर बिटवीन बोथ. ये इस तरह से दूसरा रेशनल नंबर. कुछ समझ भी आ रहा है कि बस ऐसे बैठे हुए नींद आ रही है? दिमाग से समझ आ रहा है कुछ पक्का? सो दिस वे वी विल फाइंड द इर्रेशनल नंबर बिटवीन द गिवन नंबर. इस तरह से हम इर्रेशनल नंबर निकालेंगे गिवन नंबर्स के बीच में. समझ आ रहा है कि नहीं? दिस इज ऑल इन चैप्टर 1. चैप्टर 1 में तो इसके अलावा बहुत ज्यादा कुछ आपको नया सीखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो मैंने क्वेश्चंस तो लगाए हैं निशान, वो सब आपको करने हैं. चैप्टर 2 में सीखने के लिए बहुत कुछ. देयर इज लॉट ऑफ कंटेंट इन चैप्टर 2.
तो चैप्टर 2 का मैं एक कंटेंट आपको दिखाता हूँ. आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 5 ऑन पेज नंबर 2.5. 2.5 पर एग्जाम्पल नंबर 5 दिया. So let us see how we will solve it. The question is 7n plus to the power n plus 2 minus 3 into 7 to the power n plus 1 upon 20 into 7 to the power n minus 2 into 7 to the power n. Got it? ये है क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने को वो कह रहा है. ठीक है, आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे. देखिए, वी नो वेरी वेल कि अगर 7 टू द पावर n और 7 टू द पावर 2 रहा होगा तो वी कुड हैव राइट इट 7 टू द पावर n, है ना. अगर 7 टू द पावर n इंटू 7 टू द पावर 2 रहा होगा तो हमने उसको ऐसे लिख दिया होगा. तो अब हमारे पास ये ऐसे लिखा हुआ है, तो क्या हम वापस से ऐसे लिख लें? यस या नो? इससे हमें कुछ फायदा होने वाला है. देखिए आइए क्या. It will be written as 7 to the power n into 7 to the power 2, बीच में माइनस 3 into 7 to the power n into 7 to the power 1, पावर 1 लिखने की कोई जरूरत ही नहीं, अपॉन 20 into 7 to the power n minus 2 into 7 to the power n. क्या हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 7 to the power n कॉमन ले सकते हैं? Can we take 7 to the power n कॉमन? देखो यहाँ भी 7 to the power n है, यहाँ भी कॉमन आ जाएगा. यहाँ भी 7 to the power n है, यहाँ भी 7 to the power n कॉमन आ जाएगा. आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? So let me take it common. 7 to the power n कॉमन. What left? 7 square. तो क्या 7 स्क्वायर को मैं 49 लिख लूं? 7 स्क्वायर मतलब 49. यहाँ क्या बचा? ये तो बाहर चला गया, क्या बचा? माइनस 7 का क्या? माइनस 3 इंटू 7, माइनस 3 इंटू 7, और 3 इंटू 7 मतलब 21. 3 इंटू 7 मतलब कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं. चलो भैया आगे. नीचे भी कॉमन निकाल लिया 7 टू द पावर n. यहाँ क्या बचा? 20. और आगे क्या बचा? माइनस 2. 7 टू द पावर n से 7 टू द पावर n बचा क्या? 28 अपॉन 18. 14 अपॉन 14 अपॉन 9 इज द. ठीक है, समझ आई बात की नहीं? क्या कोई दिक्कत है? So this way we will solve the questions like this. इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. समझ आई बात? आइए एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ और भी ज्यादा मजेदार. एग्जाम्पल नंबर 6. एग्जाम्पल नंबर 6. तो एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या हो रहा है जी? 9 to the power n into 3 square into 3 की पावर n माइनस 27 की पावर n अपॉन 3 की पावर 3m into 2 की पावर 3 is equals to 1 upon 27. तो prove that m minus n is equal to. ये एक्सपोनेंट इन पावर है साहब, और कुछ भी नहीं. एक्सपोनेंट इन पावर. हाँ बेटा क्या बेटा? Mobile will be like this now. Look, what is common? You
can shift your chairs this side or that side, है ना? So to adjust your location so that you can see the board clearly. अरे भाई मोबाइल नहीं गिरा देना. हाँ चलो 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 शिफ्ट. Now what you can you notice something in this question? What is that? That all of them are the power of 3. All of them are the power of 3. तो सबको 3 में convert. Let everything should be converted into 3. तो 9 को क्या लिखूं? 3 to the power और whole power. ठीक है? 3 square और 3 की पावर है. और 27 will be written as 3 की पावर 3 की पावर अपॉन 3 की पावर 3m 2 की पावर 3 1 अपॉन 3 की पावर. Is it done or not? Everything is converted into 3. Once again let us come to the same law. Multiply है, पहले तो power to the power. Power to the power will be multiplied. क्या हो जाएगा? 3 की पावर 2n 3 की पावर 2 और 3 की पावर n. ये क्या हो गया? 3 की पावर 3n. ये क्या हो गया? 3 की पावर into 2 की पावर is equals to 1 upon 3 की पावर. कोई परेशानी? Can we add these two powers? 2n और n मिलकर कितना हो जाएगा? हो जाएगा क्या 3n? आया ना? Because these are in multiplication. मल्टीप्लिकेशन में तो पावर ऐड होगी, तो 2n और n ऐड होके 3n हो जाएगा. अब देखो 3n होने से क्या फायदा? क्या 3 की पावर 3n कॉमन नहीं आ जाएगा ऊपर से? और नीचे है 3 की पावर 3m इंटू 8 लिख लूं क्या उसको? 2 की पावर 3 मतलब 8 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 की पावर. क्या कॉमन ऊपर से? 3n और 3n को ऐड भी तो कर सकते हैं. क्या 3 की पावर 3n और n को ऐड भी तो कर सकते बीच में मल्टीप्लाई लगा होता तो पक्का ऐड कर देता. अगर बीच में मल्टीप्लाई लगा होता तो मैं पक्का ऐड कर देता, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं है तो इसलिए ऐड नहीं हो सकता. समझ आई बात? क्या हो सकता है? कॉमन आ सकता है. वही मैं अगले स्टेप में करने वाला हूं. 3 की पावर 3n कॉमन, तो बचा 3 की पावर और वहां से क्या बचा? क्योंकि सब कुछ ही बाहर चला गया, सिर्फ 1 बचा अपॉन 3 की पावर 3n इंटू 8 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 की पावर 3. ये कितना हो गया? 9 माइनस 8 और ये भी 8 से 8 कैंसिल. 8 से 8 कैंसिल. हैं. -1 अभी नहीं हुआ भाई कैंसिल. अगले स्टेप में 3 की पावर 3n इंटू 8. ठीक है, वो 8 हो गया ना. 3 स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 इज नहीं. -1 कहाँ से? -1 कहां से आया? अगर यहां से सब कुछ ही कॉमन चला गया तो क्या बचेगा? 1. अगर हमारे पास से कुछ भी नहीं, सब कुछ चला गया तो 1 बचेगा हमारे पास. ठीक है, बिकॉज 1 इज मल्टीप्लाइड विद एवरी नंबर. 1 हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो अगर वो नंबर बाहर चला जाता है तो 1 वहां बचता है. 3 की पावर 3m इंटू 8 1 अपॉन 3 की पावर 8 से 8 कैंसिल. अब क्या करें? सब कुछ न्यूमरेटर में ले जाए, इधर भी इधर. तो इधर क्या हो जाएगा? 3 की पावर 3n माइनस 3m. डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी और उधर क्या हो जाएगा? 3 की पावर -3. ठीक है, यस कि नो? अब क्या बचा? पावर विल बी कंपेयर्ड, क्योंकि बेस सेम है. बिकॉज द बेस इज सेम सो वी कैन कंपेयर द पावर्स. पावर कंपेयर करने पर क्या मिला? 3n माइनस 3m इज इक्वल्स टू -3. है ना? 3 कॉमन निकाल लो या -3 कॉमन निकाल लो. -3 कॉमन निकाल लो. अगर मैं -3 कॉमन निकालूंगा तो जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा, जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा.
तो m माइनस n इज इक्वल टू माइनस 3, m माइनस n इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन माइनस 3, दैट इज प्लस 1। मजा आया कुछ? दिमाग के तार हिल गए सारे? हाँ, कम है पास। दिस वाज टू बी प्रूव्ड है ना, ये पार्ट नहीं है। हाँ जी, ये कैंसिल हो सकता था अगर ये 3 स्क्वायर इसके साथ नहीं होता। अगर ये 3 स्क्वायर इसके साथ नहीं होता तो ये पक्का कैंसिल हो जाता, लेकिन इस 3 स्क्वायर ने इस 3n और 3n को कैंसिल नहीं होने दिया। समझ आई बात? कैंसिल अब क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके साथ तो 3 स्क्वायर है, इसके साथ नहीं है। तो वो कहेगा भाई आप दो हो, मैं अकेला, मुझे अकेले को मार दो, है ना? यस, दे विल नॉट बी कैंसिल, दे कैन बी कैंसिल्ड व्हाइल ओनली 3 टू द पावर 3n माइनस 3 टू द पावर 3n इज देयर। ओके, व्हाट एल्स? शुड आई एक्सप्लेन यू वंस अगेन? एक बार फिर से समझाऊं क्या? What we have done in this question? First of all, we have converted everything into 3. So this is 3 square, this is 3 cube, and this is also 3 cube. Then what property? Power to the power means we will multiply the power. So 2 into n is 2n, 3 into n is 3n, and this is 3 to the power 3. Then what we did? 2n and n has been added. So 2n and n has become 3 to the power 3n. 3 to the power 3n into 3 square minus 3 to the power 3n upon 3 to the power 3n into 2 to the power 3 has been written as 8 minus 1 upon 3 to the power 3. Then we have taken 3 to the power 3n common. कॉमन लिया तो यहां से ये कॉमन आया, ये बच गया। यहां से अगर सब कुछ ही चला गया तो 1, पीछे माइनस 5 तो माइनस 1। अब 3 स्क्वायर मीन्स 9, minus 1 is 8, so 3 to the power 3n into 8, 3 to the power 3m into 8, 8 से 8 cancel। डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो 3 to the power 3n minus 3m, और मैं उसको भी ऊपर ले आया तो 3 to the power minus 3। अब बेस इज सेम, so the power can be compared, पावर मैंने कंपेयर कर दिया। अब मुझे ये था n minus m, मुझे लाना था m minus m, इसलिए मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया। माइनस कॉमन निकालता हूं जब भी मैं, तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन जाएगा और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव। उसी वजह से ऐसा हुआ कि m हैज बिकम पॉजिटिव, n हैज बिकम नेगेटिव, एंड दिस इज m minus n is equals to plus 1. Could you understand? मजा आया? हाँ, सक्षम बोलो क्या? माइनस कैसे? यहाँ तो 3 है भाई, यहाँ देखो 3 to the power 3n, 3 to the power 3n कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा 3 स्क्वायर, यहाँ बचा 1, अब यहाँ बचा 3 स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ तो दोनों के पास 3 है ही नहीं, तो कॉमन कैसे है? हाँ, तो फ्रॉम अपसाइड आई हैव टेकन कॉमन, यहाँ से तो मैंने 3 की पावर 3n कॉमन ले लिया, माइनस 3 की पावर 3n, वो 3 कॉमन और लेना चाह रहा था, 3 यहाँ बचा ही नहीं, तो 3 कैसे? माइनस तो ले सकते हैं, हाँ माइनस अगर हमें बनाना है तो हम माइनस 3 to the power 3n कॉमन ले सकते हैं। उस कंडीशन में क्या बचता? 1 minus 3 स्क्वायर, उस कंडीशन में बचता 1 minus 3। समझ आ गई कहानी? सो माय डियर स्टूडेंट्स, आरडी कुछ पोर्शन तो सबको सॉल्व करनी ही करनी पड़ेगी।